I'm Shweta Goyal and welcome back to my channel Easynomics. In the previous video, I have started a series with all of you explaining the distribution theories of microeconomics. So in today's video, I am going to continue with the series and will explain you the Kaldor theory. But before beginning with the series, I would like to explain you that I have started the course for the economic optional and the Indian economic services. I am going topic wise. So in paper 1 we have first section of microeconomics, in which the first topic is Marshallian and Walrasian approaches of price determination, on which I already made a video. After that, the second topic is the distribution theories, in which I already explained the Kalecki model. In today's video I'll explain you the Kaldor model, and in the next video I'll be explaining you the Ricardian theory. The third topic is the markets, different types of markets. So my next series will be on explaining the different types of market. So I'll be going with the topic wise, and I'll also highlight what is the topic is also common to the Indian economic services. So yeah, do follow me for the complete economic optional and Indian economic services course. Yeah, but for the timing, let's study the Kaldor theory. So yeah, let's get started. In Kaldor model, basically in Kaldor's model, to study any model, we first try to know the assumptions of the model. So in Kaldor's model, we have few assumptions taken by the Kaldor to explain his model. So he has taken two factors of production, labor and capital. It means production in the economy happens by using two factors, labor and capital. Second assumption is marginal propensity to save of working class, जो labor है उनको जो wages मिलती हैं. So basically marginal propensity to save of working class is different from the marginal propensity to save of capitalist class. जिनको कैपिटलिस्ट क्लास है एंड लेबर क्लास है, इनके पास इनकम आती है तो ये कुछ हिस्सा सेव करते हैं और कुछ हिस्सा खर्च करते हैं. सो बेसिकली दे हैव डिफरेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मैं अगर वर्कर हूँ, कोई और कैपिटल है, तो मैं 100 में से 10 रुपये सेव कर रही हूँ, हो सकता है वो 100 में से 15 सेव करे, 20 करे. दैट्स डिफरेंट फॉर बोथ. That is the second assumption. Third assumption is constant returns to scale exist in the economy. It means there is no surplus or deficit in the economy. Perfect competition exists in the market, and economy is operating at full employment. So these are the 5 assumptions taken by the Kaldor to explain his model. Now what Kaldor basic model explains, that Kaldor has taken the Keynesian theory. केन्शियन थ्योरी जो इक्विलिब्रियम की थी, कैल्डर ने वो यूज़ करके अपना मॉडल एक्सप्लेन करा. एंड कैल्डर ने क्या बोला? कैल्डर सेड दैट इफ़ यू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटलिस्ट क्लास है, इनको जो प्रॉफिट होता है वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर वापस इकोनॉमी में एज एन इन्वेस्टमेंट वापस लगाते हैं. तो जो वो अगर तुम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो इकोनॉमी में, सो योर प्रॉफिट शेयर इन द टोटल इनकम विल इंक्रीज. इट मीन्स अगर इकोनॉमी में प्रॉफिट बढ़ा रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास प्रॉफिट बढ़ा रहा है, तो उनका जो प्रॉफिट का शेयर है टोटल इनकम में वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज़ एन इंसेंटिव फॉर द कैपिटलिस्ट टू बेसिकली इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. सो अगर ये सिनेरियो रहता है तो इस सिनेरियो में इकोनॉमी विल रीच टू हायर लेवल्स ऑफ इनकम इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल इनकम टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट क्लास. इट मीन्स अगर आप इकोनॉमी में चाहते हो कि हमारा जो बेसिकली हायर लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी जाए, तो आपको कैपिटलिस्ट क्लास का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा. उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो वो बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे. जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे तो उनका फर्दर शेयर बढ़ेगा और यही उनको इंसेंटिवाइज करेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए. सो दैट इज़ अ प्रोसेस विच कीप्स गोइंग एंड विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम एंड विच ऑल्सो हेल्प्स to basically explain the distribution of income between capitalist class and the labor class. So this was the basic theory given by the Kaldor. Now let's understand this theory by using the equations which Kaldor used. So basically Kaldor used Keynesian theory of equilibrium. In Keynesian theory of equilibrium, we have the aggregate expenditure is equals to aggregate income. It means your consumption plus investment is equals to your consumption plus saving.
I have taken the case of two sector model in which there is no government, there is no external market. So basically by using this equation we got income is investment is equals to saving. ये equilibrium condition भी होती थी Keynesian की. So now we know total savings in the economy is equals to the जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ ये जो मैंने एक्सप्लेन करी थी ना कैपिटलिस्ट क्लास की, मतलब जो अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से अगर 10% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है तो ये हमारा हो गया पार्ट ऑफ टोटल सेविंग सेव्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, एंड ये हमारा हो गया पार्ट ऑफ सेविंग saved by the working class. Basically wages में से marginal propensity to save, profit में से marginal propensity of to save by the capitalist class. तो ये हमारी होगी total saving. Now ये S is equals to I है तो हमने यहाँ S की जगह investment रख दिया और बाकी equation same रखी. Now we also know that total income in the economy is equals to the wages plus profit. नाउ वेजेस प्लस प्रॉफिट इक्वल है तो इट मीन्स हम यहाँ से W को इस तरफ रख के P को इस तरफ ले गए तो ये हमारा हुआ वेजेस इज इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस प्रॉफिट, तो हमने ये ले लिया. नाउ व्हाट विल डू, ये तो हमारे पास इक्वेशन थी ही, अब हम इस W की जगह ये वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे. जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे सो बेसिकली हमें ये मिलेगा y माइनस पी. मैंने इसको मल्टीप्लाई करके खोल दिया, खोलने के बाद मैंने यहाँ इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा बचा प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ प्रॉफिट माइनस प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर प्लस ये वाली इक्वेशन अलग से प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर इनटू में टोटल इनकम. नाउ मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया. सो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिला I बाय वाई दैट इज़ इन्वेस्टमेंट टू income ratio is equals to P by Y that is profit to income ratio minus this plus ये Y से Y कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ marginal propensity to save of working class बचेगा. Now इस मॉडल को मैंने ये SW को इस तरफ ले गई I माइनस इस खाली मैंने यहाँ पे P बाय वाई छोड़ दिया, बाकी मैं इस पूरी इक्वेशन को इस तरफ लेके आऊँगी. सो P बाय वाई इस तरफ छोड़ा, I बाय वाई माइनस SW और जो ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में था ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा. सो ये पूरा मॉडल है जो बेसिकली किसने एक्सप्लेन करा है, कैल्डर ने. ये इक्वेशन निकल के आती है. नाउ इस इक्वेशन के कंक्लूजन क्या है, सो बेसिकली वी हैव टू कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन इज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टू टोटल इनकम, मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी सो बेसिकली प्रॉफिट टू इनकम विल इंक्रीज. इट मीन्स अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी टोटल इनकम में से जो प्रॉफिट है, जो कैपिटलिस्ट का शेयर है, दैट विल इंक्रीज. एंड अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. इट मीन्स क्या है कि अगर उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है ना, इट मीन्स दे आर सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस. अगर वो स्पेंड लेस करेंगे तो इकोनॉमी में जो गुड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटलिस्ट क्लास, उनको डिमांड कौन करेगा. डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी वर्किंग क्लास में कहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी. सो बेसिकली दिस वॉज द प्रॉब्लम. सो वी हैव टू कंक्लूजन. आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा वो री इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी. सो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मॉडल एक्सप्लेन बाय द कैल्डर. एंड द सेकेंड थिंग इज अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास है वो लेस होनी चाहिए. अब यहाँ पे इस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक और कंडीशन है, दैट इज़ ये देखो जो डिनोमिनेटर में नंबर है, अगर सब अज्यूम करो तुम्हारी मार्जिनल ये वाला जो नंबर है इससे ये वाला जो नंबर है प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास ये ज़्यादा आ जाए इससे, तो सॉरी ये बाद वाला नंबर जो है ये ज़्यादा आ जाए तो इट मीन्स ये पूरा नेगेटिव में आ जाएगा. नेगेटिव में आने की वजह से ये मॉडल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. तो इस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी के लिए कंडीशन है कि योर प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास. सो दिस वॉज द मॉडल जो यहाँ पे था, मैंने पूरा जस्ट एक्सप्लेन किया था, वही मैंने इक्वेशन से एक्सप्लेन किया. सो ये वाला मॉडल था जिसमें प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ प्रॉफिट वर्किंग कैपिटलिस्ट क्लास शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी वर्किंग क्लास. नाउ ओनली वे, दिस इज़ द ओनली वे, this is the only model to keep the economy at full employment equilibrium. So this was the model explained by the Calder. However, this model has also explained that there are two constraints.
आप वर्कर्स को जो दे रहे हो वेजेस, वो मिनिमम लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट है दैट शुड ऑल्सो, प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट क्लास को हो रहा है दैट शुड ऑल्सो बी अबव द मिनिमम लेवल, क्योंकि प्रॉफिट मिनिमम से ज़्यादा होगा तभी वो उसको री इन्वेस्ट करेंगे, और वेजेस जो हैं वो मिनिमम से ज़्यादा होंगी तभी जो वर्किंग क्लास है कैपिटलिस्ट का ज़्यादा शेयर वाला मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस मॉडल कि कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा अर्न कर रही है एंड वर्किंग क्लास आर नॉट अर्निंग। सो दीज वेजेस मिनिमम एंड प्रॉफिट मिनिमम, this should be greater than the minimum level. So this was the basic model.